Hello everyone. By now, you have known well about the adjectives, their functions, their kinds, and the three degrees into which they all are compared. And now it's time to see some examples which are going to give you great lessons that these three degrees can be interchanged. So, the topic for today is interchange of degrees. Suppose it is positive. Any sentence be given in positive degree and you are required to change it to comparative degree, it is possible. If it is comparative, suppose, and you are required to make it superlative, it is also possible. And if it is superlative itself, अगर आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन सुपरलेटिव हो, ऐसा सेंटेंस हो, तो उसको आप पॉजिटिव या कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू होल्ड some good studies about the interchange of degrees. Means we will take some examples, and by the means of those examples we will learn how to change a positive degree into comparative, how can a comparative be changed into positive, or is it possible to change a comparative um, or positive into its superlative form. So let's consider this topic today. Interchange of degree means changing any of the degrees into some other degree. It means positive को अगर कंपैरेटिव करते हैं तो वो इंटरचेंज ऑफ डिग्री है. अगर कंपैरेटिव को आप सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो दैट इज़ टू अ काइंड ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्री. तो लेट्स सी with these examples. Maybe you can now easily understand कि what degree of comparison has been there in use. अब आपको पता होगा कि tall has taken er and this conjunction indicates the use of comparative degree. तो यह आपका comparative degree में है. मान लीजिए suppose it be in comparative degree and you are required to change it into positive or some other degree like superlative degree. So we will have to see if it is possible. क्या ये संभव है कि इसके दोनों फॉर्म्स हो सकते हैं. तीन फॉर्म्स में से एक ये खुद है कंपैरेटिव. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, आइदर टू चेंज इट इनटू सुपरलेटिव और टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव. सो इज इट पॉसिबल टू चेंज इट इनटू सुपरलेटिव? तो आपका जवाब होना चाहिए she is taller than the other girls. It means how many girls are there? So she finds the greatest degree if they are compared. अगर बाकी सारी गर्ल्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी सभी लड़कियों से इसमें बताया गया है, एक तरफ सारी लड़कियां और एक तरफ ये लड़की. This single girl is being talked about as to be in the
हाईएस्ट इन ऑर्डर, हाईएस्ट इन डिग्री। तो हाईएस्ट इन डिग्री के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि ऑल्दो द सेंटेंस इज देयर इन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में तो है लेकिन इसका सुपरलेटिव फॉर्म भी आ जाएगा बिकॉज इट होल्ड्स द सेम मीनिंग। अगर आप कहते हैं वो बाकी सभी लड़कियों से लंबी है तो कंपैरेटिव में दैन का प्रयोग करके आपने इस बात को कहा। इसी को हम सुपरलेटिव में टॉलेस्ट का प्रयोग करके भी कह सकते हैं। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल मेक्स इट सुपरलेटिव इन ऑर्डर। सो वी सॉ, हमने देखा कि द सुपरलेटिव फॉर्म वाज पॉसिबल। इसको आप सुपरलेटिव में लिख सकते हैं, शी इज द tallest, she is the tallest girl. It means both the sentences conveying the same meaning. तो डिग्री, ड्यूरिंग द इंटरचेंज ऑफ डिग्री आप यही करते हैं, यू नीड टू मेंटेन द मीनिंग एट लीस्ट एंड यू नीड नॉट टेम्पर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। आपको इसका मीनिंग बदलना नहीं होगा, जो मीनिंग इसमें है वही मीनिंग इसमें है। लेकिन अंतर क्या आया कि हमारे कंजंक्शंस बदल गए, एडजेक्टिव के फॉर्म्स बदल गए और इनके बदलने के साथ साथ कंपैरेटिव से ये सुपरलेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस आ गया। दिस डिग्री इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। वी मेड यूज ऑफ EST विद द एडजेक्टिव। तो वी सिंपली अंडरस्टूड कि एनी कंपैरेटिव सेंटेंस कैन बी transformed into superlative if it is possible, and you need to see whether it is possible or not. So it was possible in this case. We saw the good example of comparative being changed into superlative. Now let's try whether the same sentence can be changed into positive or not, because we are left with two options, superlative and positive. ये कंपैरेटिव में था तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो सुपरलेटिव या तो पॉजिटिव। तो एक में तो ये बदल गया, अब दूसरे में देखते हैं ये बदलता है कि नहीं। If we write the same comparative sentence into positive one, we will have to make use of as or as correlative conjunctions, as you know. तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं and hopefully this sentence too is going to give you the same meaning. यही meaning आपका निकलेगा, no other girl our sentence was she is taller than the other girls. तो वो बाकी सभी लड़कियों से लंबी है। इसका मतलब है कि कोई भी लड़की उसके जितना लंबी नहीं है। तो हम इसको पॉजिटिव में दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज और एज का प्रयोग हर बार पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो और सेंटेंस का भाव भी बदला नहीं, द सेंटेंस मेंटेन्स इट्स मीनिंग। वही मीनिंग इस सेंटेंस में भी है। जो बात हमने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कहना चाहा वही बात हम पॉजिटिव डिग्री में भी आसानी से कह पा रहे हैं। नो अदर गर्ल इज एज टॉल एज हर। इसका मतलब अगर वो कंपैरेटिव में हमने कहा कि वो बाकी सभी लड़कियों से लंबी है, तो हम पॉजिटिव में कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी लड़की उसके जितनी लंबी नहीं है। बात तो बराबर है, वो बाकी लड़कियों से लंबी है या फिर कोई दूसरी लड़की उसके जितनी लंबी नहीं है, या तो वह सबसे लंबी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द 3 डिग्रीज।
एक दिया हुआ था, एक को हमने सुपरलेटिव बनाया और उसी को फिर हमने पॉजिटिव भी बना के देखा। अब नाउ लेट्स ट्राई सम अदर एग्जाम्पल्स टू। This is example number 2. We'll see example number 2 showing its positive degree of comparison. As and as are the important marks of positive degree of comparison. So we are trying positive degree this time, and we are left with two options still. Comparative, अगर ये positive में है, if this sentence is there in positive, तो we are left with two options, either to change it into comparative or to change it into superlative. So let's see whether it is possible to change the same sentence carrying the same meaning. Meaning को भी भूलना नहीं होगा। अगर आपने change कर दिया और meaning बदल गया तो that is not called the interchange of degree. आपको meaning के साथ और rules के साथ बदलना होगा। तो let's see, पटना is as much hot as Delhi. ऐसे sentences को interchange करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको इनका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है. One needs to understand the meaning of the given sentence so as to convert them, transform them into the required degrees of comparison. जिसमें आपको चेंज करना है, पहले इसका मीनिंग को समझिए कि what does the sentence convey, इसमें क्या बताया गया है. तो पटना is as much hot as Delhi. It is affirmative sentence. इसमें सकारात्मक भाव है. पटना भी उतना ही गर्म है जितना दिल्ली है. इसका मतलब दोनों शहर इक्वल हैं. तो इक्वल का सेंस पॉजिटिव में दिखाया जाता है. तो दोनों हीट के रिस्पेक्ट में, गर्मी के रिस्पेक्ट में दोनों शहर बराबर हैं. तो ये पॉजिटिव डिग्री है. अब हमारे पास कंपैरेटिव बनाने का ऑप्शन है. क्या ये कंपैरेटिव बनेगा? तो देखते हैं. This is comparative. This is positive and this is comparative. पॉजिटिव को हमने कंपैरेटिव में बदला एंड विद द स्लाइट चेंजेस, मैंने थोड़ा बहुत बदलाव किया एंड इट रिटेन्स इट्स सेम मीनिंग, द यूजुअल मीनिंग, द सेम मीनिंग इज देयर इन द सेकेंड सेंटेंस. मैंने इस पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कर दिया. पटना इज़ एज मच हॉट एज दिल्ली, यानी दोनों गर्मी के मामले में एक जितने हैं. पटना और दिल्ली दोनों ही बराबर गर्म हैं. अब उसी चीज़ को मैंने लिख दिया कंपैरेटिव में, मेकिंग यूज ऑफ दैन एंड द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ दिस एडजेक्टिव ER लगा के मैंने कंपैरेटिव में इसको लिया और इसको साइन ऑफ निगेशन देना जरूरी हुआ टू मेंटेन इट्स मीनिंग. मीनिंग खराब ना हो इसलिए मैंने नॉट का प्रयोग इसमें कर लिया. तो दिल्ली इज़ नॉट हॉटर देन दैट ऑफ पटना.
आपको देखना होगा कि पटना और दिल्ली दोनों गर्मी के मामले में बराबर हैं। तो मैंने कहा कि दिल्ली पटना से ज़्यादा गर्म नहीं है, तो बात बराबर हुआ। पटना और दिल्ली गर्मी के मामले में दोनों बराबर हैं, तो दिल्ली पटना से ज़्यादा गर्म नहीं है, तो डिग्री बदल गया लेकिन मीनिंग नहीं बदला। वी चेंज द डिग्री, इट वॉज पॉजिटिव अर्लियर, नाउ वी चेंज इट टू कंपेरेटिव, बट आप देखेंगे कि द मीनिंग इज सेम। तो यही खास बात है, एंड दिस इज द आर्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्री, एंड दिस helps you a lot while speaking, while writing your compositions and all that. So it is very important, to learn how the degrees are changed, and they are very simple. Like I did here in this sentence, Delhi is not better than that of Patna. And now there is one more important question to ask, whether it struck you or not. आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आया या नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप दैट ऑफ का प्रयोग आपने किया है। जनरली दैट ऑफ इज नॉट यूज्ड इन almost 90-95% केसेस। यू नीड नॉट मेक यूज ऑफ दैट ऑफ, लेकिन यहाँ आपने टेम्परेचर की बात की है। यहाँ कंपैरिजन पटना से नहीं हो रहा है। व्हेन यू आर नॉट कंपेयरिंग दिल्ली विद पटना, दिल्ली इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद पटना एज अ सिटी। इन दोनों शहरों का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इस कंपैरेटिव डिग्री में मैंने इन दोनों शहरों का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ दीज टू टाउन्स or cities have been compared, not the cities themselves. So when we compare the temperature or climate of any place with that of the other, तो उस केस में आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे कि दिल्ली इज नॉट हॉटर देन पटना। अगर आप ऐसा लिखेंगे, इट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू शो द डिफरेंस। आपको अंतर ये लेके आना होगा दैट यू नो हाउ ऑल सच इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज आर डन। तो आप ऐसा करेंगे, दिल्ली इज नॉट हॉटर देन दैट ऑफ पटना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट समवन, तो डायरेक्टली यू कैन कंपेयर, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप उसके गुण या दोष के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे फ्रेजेस का प्रयोग करेंगे, तो दिल्ली इज़ नॉट हॉटर देन दैट ऑफ पटना। अगर दिल्ली और पटना की बात हो रही होती किसी भी मामले में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते थे विदाउट दैट ऑफ का। लेकिन जब उनके एक क्वालिटी की बात हो रही है, टेम्परेचर की, इन रेस्पेक्ट ऑफ हीट दे आर बीइंग कंपेयर्ड, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि दिल्ली इज़ नॉट हॉटर देन पटना। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको लगाएंगे हर बार देन दैट ऑफ पटना। ठीक है, एक तो कंपैरेटिव ये बन गया। द नेक्स्ट थिंग इज टू check whether it can be transformed to its superlative form or not. So let's see. Yes, two things or two people और टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड। आप देख सकते हैं, अगर ऐसा ही मिलता जुलता एग्जाम्पल मैं दूँ कि मोहन सोहन से लंबा है, मोहन इज़ टॉलर देन सोहन, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को भी सबसे लंबा नहीं दिखाना है। आई डोंट वॉन्ट टू शो एनीबडी इन द हाइएस्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। मैंने कहा मोहन इज टॉलर देन सोहन, इट मीन्स टू पीपल आर बीइंग कंपेयर्ड, एंड हियर वी नीड नॉट शो एनी वन ऑफ देम इन द हाइएस्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। यहाँ पे हाइएस्ट डिग्री की बात हो ही नहीं सकती है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं किसको लिखूँगा कि ही इज़ द टॉलेस्ट,
Mohan is the tallest or Sohan is the tallest, writing all such sentences would go wrong. तो इस तरीके से लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो sometimes we see the comparative sentences do not form their superlative forms. जैसे मोहन सोहन से लंबा है, मोहन is taller than सोहन, तो you can't write कि सोहन is the tallest या मोहन is the tallest, because writing the two ways सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. इट वुड टेक अ वेरी रॉन्ग टर्न, गलत मोड़ ले लेगा ये. तो वी नीड टू चेक वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट. नाउ लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम काइंड. Akbar was the greatest king of India. Now, what do you think? What is the degree of this sentence? Akbar was the greatest king of India. Tenses do not matter. कोई भी टेंस हो, आपका डिग्री क्या है? The use of definite article the and est form of the adjective suggesting that it is superlative degree. है ना superlative degree? Superlative degree को अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे कंपैरेटिव करें या तो हम इसे पॉजिटिव में चेंज करें. तो ये दोनों में संभव है, ये दोनों में संभव है. देखिए कैसे, इसका पहले मीनिंग को समझेंगे. अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया. अकबर महान, सबसे महान राजा थे. इट इज़ द सुपरलेटिव यूज, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे महान थे, यानी हाईएस्ट डिग्री में सुपरलेटिव में है ये सेंटेंस. तो हमारे पास कंपैरेटिव और पॉजिटिव दो ऑप्शंस हैं. तो लेट्स बिगिन विद पॉजिटिव. पॉजिटिव से शुरू करके देखते हैं. पॉजिटिव बनाते हुए इसको हम लिख सकते हैं नो अदर किंग of India was as great as अकबर. आप देख सकते हैं as and as conjunctions and the state of the degree. आप देख सकते हैं एडजेक्टिव अपने फर्स्ट फॉर्म में यानी पॉजिटिव फॉर्म में, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. सो दिस इज द थर्ड फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री. तो एज एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इट मीन्स इट हैज टर्न एंड विद containing its meaning also it has turned to positive. और मीनिंग भी एक ही जैसा है, मीनिंग में भी कोई बदलाव नहीं आया है. आप देख सकते हैं नो अदर किंग ऑफ इंडिया वॉज एज ग्रेट एज अकबर, यानी जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ है, खाली डिग्री का चेंज कर दिया गया है. तो अकबर सबसे महान राजा था भारत का, और कोई दूसरा राजा उतना महान नहीं था जितना अकबर था. इंडिया का कोई दूसरा राजा उतना महान नहीं था जितना अकबर था. तो बात हो गया ना बराबर, दोनों का मीनिंग हो गया ना बराबर, खाली डिग्रीज चेंज हो गया है. अब द सेम सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू कंपैरेटिव. आप इसी को कंपैरेटिव में भी लिख सकते हैं कि कोई नो अदर किंग, let's write into comparative. You saw in positive. Now
इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में इसको क्या लिख सकते हैं कि नो अदर किंग वाज ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेट का कंपैरेटिव फॉर्म ग्रेटर होता है, तो आप लिख सकते हैं नो अदर किंग वाज ग्रेटर देन अकबर इन इंडिया। नो अदर किंग ऑफ इंडिया, आप ऐसे लिखिए, नो अदर किंग ऑफ इंडिया was greater than अकबर। हमने उसी सेंटेंस को, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में लिखा और मीनिंग को रिटेन किया। अब मैंने इसको कंपैरेटिव में लिखा है, अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, सबसे महान राजा था। इसका मतलब हुआ कि दूसरा कोई भी राजा उससे ज़्यादा महान नहीं था। उस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज ग्रेटर देन अकबर, यही मीनिंग हुआ ना। तो इन दिस वे we transformation means changing the structure of sentences, not altering the sense and meaning of sentences। आप ये ट्रांसफॉर्मेशन की ये कला है, इंटरचेंजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आप मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, आप मीनिंग नहीं बदलेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, डिग्री बदल सकते हैं, और वही काम मैंने कर दिया। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, तो it is possible to say in this way also, no other king of India was greater than Akbar, and this has changed into comparative degree. So my dear students, you need to hold little practice, self practice at home, and this will help you a lot. Thank you for watching the video. Thanks a lot.